Good morning, students, and welcome back. Now we will continue with our lessons. Yesterday we stopped up to here. Okay, I hope you remember what we have learned yesterday. Faraday was invited by Dave's because in Dave's lab क्या हुआ एक chemical explosion होने की वजह से what happened? He was temporarily blinded. So he need an assistant. So he called Faraday for his help. Okay. He hired him as a secretary. See over here. Okay, and he told him to do work in the lab and all. He was cleaning the lab and all. Faraday was satisfied with that because anyway he got a chance to see a science related things and all, experiments and all. He was happy with that only. But the job was to cleaning as a lab assistant and all. But he was still happy with what he was doing. Okay, one day क्या हो गया, एक दिन क्या हुआ, what happened? One day Dave tried to recreate a famous electromagnetism experiment with fellow chemist William Olston. एक electromagnetic से related एक experiment करना चाहते थे वो फिर से दोबारा with William Olston. When electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet. यानी वो वायर मैग्नेट की तरह होता है. एंड ही वॉन्टेड टू गिव दैट उसमें कंटिन्यूसली वो प्रोसेस होना चाहिए, बट ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट. तो ही वॉज इन अ बिट कन्फ्यूजन और उसने चिढ़ाने के रूप में, फ्रस्ट्रेशन में उसने फैराडे को बोला, यू डू दिस एक्सपेरिमेंट. नाउ वी विल प्रोसीड विद दिस. Within a few days, Faraday solved the problems. In fact, he went further and the result was first induction motor. Now, the job which was given to him to do that, this one experiment, so he was successful in that. Okay, Faraday was successful and he went further. उससे आगे भी बढ़े वो, and the result was the first induction motor. और उस प्रोसेस इससे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इंडक्शन मोटर तैयार किया विच कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल करंट इनटू कंटिन्यूअस मैकेनिकल मोशन, जिसने इलेक्ट्रिक करंट को एक कंटिन्यूअस मतलब आगे बढ़ते बढ़ते जाने के लिए ऐसे मैकेनिकल मोशंस उन्होंने तैयार किया. द इंडक्शन मोटर स्पर्ड ए रेवोल्यूशंस. ओके, fans, air conditioning, sewing machines, photographs, power tools, cars, and even trains and aeroplane engines grew out of this simple device, which was born out of mockery directed at Faraday. Using this induction motor, many other things were done with the help of that. फैंस बनाए गए थे, एयर कंडीशनिंग बनाए गए थे, शूइंग मशीन्स थे, फोटोग्राफ्स थे, पावर टूल्स थे, कार्स थे और इवन ट्रेन्स एंड एरोप्लेन इंजिन्स, ये सब इस सिंपल डिवाइस के द्वारा बनाए गए थे. स्पर्ड का मतलब स्टार्टेड एंड स्पीडेड अप. ओके, द इंडक्शन मोटर स्टार्टेड एंड स्पीडेड अप, स्पर्ड का मतलब. तो फैराडे became a celebrity scientist overnight. यानी रात भर में वो एक सेलिब्रिटी की तरह बन गए, मतलब एक नाम, उनका एक नाम हो गया, हौदा हो गया. Nobody now cared about his social status or education. This young man had just created a revolution. Now nobody was cared about this social status. उन्होंने एक रात भर में अपना नाम ऐसे बना लिया है कि अब उसकी सोशल स्टेटस के बारे में, यानी उनकी रुतबा क्या है सोसाइटी में, ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, ना ही उनके एजुकेशन में बारे में. This young man had just created a revolution. One would think as a teacher Davy was happy at his pupil's achievement, but in reality he was jealous. अभी डेव एक्चुअली वो ऐसे दिखा रहे थे, ही वाज शोइंग दैट ही वाज हैप्पी विद हिज स्टूडेंट्स अचीवमेंट. एक तरह से फैराडे उनके स्टूडेंट ही थे क्योंकि उनके अंडर काम कर रहे थे, एंड ही हैज़ गिवन हिम द चांस. एक्चुअली इट वाजंट अ चांस, ही वाज टोटली फ्रस्ट्रेटेड कि वो खुद से नहीं कर पा रहे थे और चिढ़ाने के तौर पर फैराडे को ये काम उन्होंने दे दिया था. बट फैराडे के इससे कोशिश से वो काम सक्सेस हो गए. एक्चुअली ही वॉज नॉट हैप्पी बट ही वॉज जेलस. उसको जेलसी फील होने लगे कि उनसे नहीं हो पाया, उसका स्टूडेंट ने कर दिखाया. पीपल स्टार्टेड टेलिंग डेवी दैट ऑल इज डिस्कवरीज द बेस्ट वॉज द फैराडे हिमसेल्फ.
तो सब लोग सब सराहने लगे कि उन्होंने जो फैराडे का चॉइस किया ये सबसे बेहतर है. दिस मेड हिम इवन मोर jealous. And angry Davy gave Faraday an impossible task to keep him out of his way. He handed him a piece of Bavarian glass which was used in the lenses in telescope and microscope and asked him to reverse engineer it. Okay, तो उन्होंने क्या गुस्से के मारे उन्होंने क्या किया और एक काम दे दिया जो बहुत इम्पॉसिबल था. इट वॉज इम्पॉसिबल, टफ था. ओके, ही हैंडेड ए पीस, एक बेवेरियन ग्लास का एक चीज़ उन्होंने उन पे दिया था. ए पीस ऑफ बेवेरियन ग्लास विच वॉज यूज इन द लेंस. वो बेवेरियन ग्लास ऐसे तरह के ग्लास होते हैं जो टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करते हैं. लेंसेज जो होते ग्लासेस जो लगाए जाते हैं उनका ये करने के लिए. एंड आस्क्ड हिम टू रिवर्स इंजीनियर हिट. रिवर्स इंजीनियर का मतलब उसे देखना अच्छी तरह से कि उस ऑब्जेक्ट को किस तरह बनाया गया है सो दैट डुप्लीकेट थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम इट. कोई भी चीज़ ओरिजिनल रहता है तो उसके बारे में जानकारी लेके वैसे कि वैसे डुप्लीकेट बनाया जाता है. तो इवन डेवी वांटेड द सेम थिंग कि उस लेंसेज को देख के उसका डुप्लीकेट बनाया जा सके. और उसके लिए उन्होंने क्या किया, फैराडे को काम दिया कि उस ग्लास को ठीक तरह से देखो और उसे अंडरस्टैंड करो सो दैट वी कैन मेक दैट. बेवेरियन ग्लास वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय ए सीक्रेट complicated process, and Davy knew that with the equipment available in the lab, Faraday would never be able to accomplish this task. This piece of glass became a significant thing in his life. यानी डेवी को पता था कि दिस वेरी सीक्रेट, वो जो मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है. देखिए, कुछ चीज़ें कभी बनाया जाता है तो उसका ये बताया नहीं जाता कि उसको क्या डाला गया, कैसे डाला. इवन द कभी कभी खाने की रेसिपीज होते हैं तो हर कोई वो बताते नहीं. अगर सबको पसंद आता है तो वो दूसरे को बताना नहीं चाहते कि वो किस तरह बनाया गया. तो ऐसे सब चीज़ें होती है. तो इनको इवन डेवी नो दैट सीक्रेट, पर वो बताने नहीं चाहते थे इनको. वो बहुत एक सीक्रेट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था. एंड डेवी न्यू दैट विद द इक्विपमेंट अवेलेबल इन द लैब फैराडे वुड नेवर बी एबल टू. और जो भी इक्विपमेंट यहाँ पे लैब में था उससे मदद से फैराडे कभी भी बना नहीं पाएंगे. दिस पीस ऑफ ग्लास बिकेम ए सिग्निफिकेंट थिंग इन हिज लाइफ. फैराडे हैड नेवर गिव अप एटीट्यूड एंड ही रिस्पेक्टेड डेवी, सो ही एक्सेप्टेड द असाइनमेंट डिस्पाइट नोइंग दैट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. Now Faraday was knowing that it was not an easy task, but still he accepted that because he respected Davy very much. He was a role model for him. He toiled for 4 years with no help from Davy. यानी उन्होंने बहुत ये किया, डेवी का कोई मदद उसमें नहीं किया. 4 साल उस पर उन्होंने ज़ाया किया पर it didn't get any success and Davy even didn't help him. एंड एज एक्सपेक्टेड फेल. यानी जो जिस काम के लिए उन्हें बोला गया था वो काम क्या हुआ, फेल हो गया. बिकॉज 4 साल उस पर लगातार लगे रहे, इसके बावजूद भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली और डेवी ने उसे कोई मदद भी नहीं की. फैराडे नेवर लर्न द सीक्रेट एंड दिस रिमेंड इज फर्स्ट फेलियर एज ए साइंटिस्ट. ओके, उनको ये सीक्रेट पता नहीं है कि कैसे वो ग्लास बनाया गया है और वो इसकी वजह से उनका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो एक फेलियर रहा एज ए साइंटिस्ट. टू रिमाइंड हिमसेल्फ ऑफ दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स ही केप्ट ए सिंगल ग्लास ब्रिक ऑन हिज शेल्फ एज ए सोविनर. यानी ये उनको हमेशा याद दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो सिंगल ग्लास के ब्रिक्स उन्होंने अपने शेल्फ में रख दिए ताकि उनको हमेशा याद दिलाते रहे कि वो एक चीज़ में वो नाकामयाब रहे. उसे याद के तौर पर उन्होंने रखा. दिस वुड इंस्पायर हिम ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, जिसकी वजह से वो चीज़ उनको बार बार देखने पर उनको इंस्पायर करने के लिए कि ई कैन डू इट, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना है, ई कैन डू इट, ये इंस्पायर करने के लिए उन्होंने उसे रखा था अपने सामने. इन 1829 डेविड डाइड एंड फैराडे सक्सेडेड हिम एज ए हेड ऑफ द लेबोरेटरी. यानी आफ्टर डेवी का डेथ होने के बाद फैराडे उस लेबोरेटरी का इंचार्ज हो गए या हेड हो गए. ही वॉज फ्री टू परस्यू वॉट एवर ही लाइक एंड ही मेड अनदर रेवोल्यूशनरी डिस्कवरीज. He noticed that if he moved a magnet, it could produce electrical current. Thus, he could now convert motions into electricity. This is how the electrical generator was born.
something still used today to generate all kinds of power like dynamos and other devices. Okay, what happened after the death of the Davy? Faraday was the head of the laboratory. Now he was free to pursue, मतलब वो अभी मुक्त हो गए, मैंने उनके पर कोई बंदिश ही नहीं थी. वो जो चाहे कुछ भी चीज़ करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए वो एकदम बेखौफ थे, जिसका मैंने उनको कोई टोकने रोकने वाला नहीं. वो जो चाहते थे वो कर सकते थे. ये नोटिस दैट इफ रिमूव ए मैग्नेट, उन्होंने नोटिस किया कि जब भी मैग्नेट मूव करता है इट प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिकल करंट. दस ही कुड नाउ कन्वर्ट मोशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी. तब उनको पता चला कि मोशन को कन्वर्ट करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये कर सकते हैं. इसके दिस टाइप ऑफ दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर वॉज बॉर्न. इसकी मदद से इलेक्ट्रिकल जनरेटर बनाया गया विच इज स्टिल यूज टू जनरेट ऑल काइंड्स ऑफ पावर. यानी आज भी जो पावर जाते हैं तो जनरेटर का इस्तेमाल वगैरह होता है. दैट इज ड्यू टू हिज एफर्ट्स लाइक डायनामोस एंड अदर डिवाइसेस. अदर बाकी सारे डिवाइसेस भी बनाए गए. फैराडे वॉज नाउ ए लेजेंड. In 1840, he developed memory loss, which continued for the rest of his life. But the disease did not stop him. He pursued starting a complicated experiment to prove that light was closely related to electricity and magnetism, a novel thought in those times. यानी फैराडे इन 1840 एक ये वो हादसा हुआ, उनका मेमोरी लॉस होने लग गया. ओके, यानी भूल जाते थे वो, पर उन्होंने अपना काम को कभी ये नहीं किया, वो काम लगातार करते गए. बट द डिजीज डिड नॉट स्टॉप हिम. ही प्रिजर्व स्टार्टिंग कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट. वो अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट करते गए टू प्रूव दैट लाइट वॉज क्लोजली, लाइट क्या है, क्लोजली रिलेट करता है किससे, इलेक्ट्रिसिटी से और मैग्नेटिज्म से. रिमेंबर दैट पीस ऑफ एवरीथिंग ग्लास Faraday had kept on his shelf. He was determined to convert the remainder of his first major failure to an instrument of great success. He used the same glass now to show that in the presence of a magnet, light could be isolated into a single way rather than spreading out randomly in all directions, a concept called polarization. Okay. यानी वो ग्लास जो उन्होंने रखा था उसको वो हमेशा याद दिलाने के लिए कि उनका लाइफ का पहले फेलियर रहा, वो चीज़ से उन्होंने क्या किया, फर्स्ट मेजर यूज दैट सेम ग्लास टू शो दैट प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेट लाइट कुड बी आइसोलेटेड इनटू सिंगल वे. यानी लाइट को हम लोग ये करके सिंगल वे में ये कर सकते हैं रैदर देन स्प्रेडिंग, यानी उसको स्प्रेड होने से बचा के एक सिंगल वेव में जाने के लिए ये कर सकते हैं. That is what called polarizations. Okay, we will stop now right here. Remaining part we will be concluding in the next lecture. Okay, thank you.